শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। নবম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 51 থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 9.51 অনওয়ার্ডস। এই মালা কার খায়, এই প্রেম ফল, এই মালা কার খায়, এই প্রেম ফল, নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহল। নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহল। अब सत्यभामा माता जी, ये गौरांग महाप्रभु का अंतरंग एजेंडा, बहिरंग एजेंडा ठीक है, सबको प्रेम फल वितरण करना, लेकिन उनका पर्सनल भी एक एजेंडा था। वो है भगवान साक्षात श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम, जो कृष्ण प्रेम करके जो आनंद है, उसको आस्वादन करने का भी उनका इच्छा था ना। उसीलिए यही मालाकार कौन है? गार्डनर गौरांग महाप्रभु खाए यही प्रेम फल, खुद भी खा रहे ये प्रेम फल। क्यों? क्योंकि ये भी तो उनका एजेंडा था। राधा रानी को क्या मिलता है हमको भजन कीर्तन करके, हमारा आराधना करके? व्हाट इज द नेक्टर शी एंजॉयज? आई वांट टू एंजॉय दैट नेक्टर। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, আপনি আচরি ভক্তি করিলা প্রচার। প্রথমে নিজেকে আচরণ করে করতে হবে এবং তারপর শিক্ষা দিতে হবে। সেটি হচ্ছে আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য। যে বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন সেই বিষয় সম্বন্ধে নিজেই যদি না জানেন, তাহলে তার শিক্ষা কার্যকরী হবে না। তাই কেবল চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন সম্বন্ধে জানলেই হবে না, ব্যবহারিকভাবে জীবনে তার প্রয়োগও করতে হবে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কখনো কখনো মূর্ছিত হয়ে পড়তেন এবং বহুক্ষণ অচেতন হয়ে থাকতেন। তিনি তার শিষ্টাষ্টকে প্রার্থনা করেছেন, যুগায়তন নিমেষেন চক্ষুষা প্রবর্ষায়িতম শূন্যায়তং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহে নমে। হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে এক নিমিষকেও আমার এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। বর্ষার ধারার মতো আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে এবং সমস্ত জগৎ আমার কাছে শূন্য মনে হচ্ছে। এটি হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার এবং ভগবত প্রেমের ফল ভক্ষণ করার চরম অবস্থা, যা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করে দিয়েছেন। কৃত্রিম ভাবে এই অবস্থার অনুকরণ করা উচিত না। পক্ষান্তরে নিষ্ঠা ভরে ঐকান্তিক ভাবে ভগবত ভক্তির বিধিগুলি অনুসরণ করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। তাহলে যথাযথ সময়ে এই সমস্ত লক্ষণগুলি এমনিতেই প্রকাশিত হবে। आर्टिफिशियली करने का कोई दरकार नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा भजन कीर्तन करने से। চক্ষুদয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠবে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে স্পষ্টভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করা যাবে না এবং গভীর আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হবে। এই দশা অটোমেটিক্যালি আয়েগা ব্যক্তি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে তা অনুকরণ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সেই সময় জন্য প্রতীক্ষা করা। তখন এই সমস্ত লক্ষণগুলি আপনা থেকেই তার শরীরে প্রকাশিত হবে। সর্বলোকে মত্ত কইলা আপন সমান, সর্বলোকে মত্ত কইলা আপন সমান, প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখিয়ান। প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখিয়ান। যে যে পূর্বে নিন্দা কইল বলি মাতোয়াল, যে যে পূর্বে নিন্দা কইল বলি মাতোয়াল, সেহ ফল খায় নাচে বলে ভালো ভালো। সেহ ফল খায় নাচে বলে ভালো ভালো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার সংকীর্তন আন্দোলনের দ্বারা সকলকেই তার মতো মত্ত করে তুললেন। ঠিক আছে, আমরা এমন কোন লোককে খুঁজে পেলাম না যে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়নি। আমরা বলছে, আমরা বাকি তাহলে হবে হয়তো কবিরাজ গোস্বামী
মানে ওই সময়কার তো কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর সময়কারই তো ব্যক্তি, নেক্সট জেনারেশন। তো উনি বলছেন যে আমরা দেখতে পাই সবাই মানে এভরিবডি ওয়াজ কৃষ্ণা কনসিয়াস অ্যাট দ্যাট টাইম ডিউরিং আওয়ার জেনারেশন। আমরা এমন কোন লোককে খুঁজে পেলাম না যে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়নি। सोचिए, नॉट ओनली दे वर कृष्णा कॉन्शियस बट दे वर एकदम कृष्ण प्रेम माने प्योर डिवोटीज एट दैट टाइम। ऑब्वियसली भगवान जिनको भक्त बनाया, भगवान का जो दर्शन किया, भगवान का प्रचार में तो प्योर डिवोटीज हो ही जाएगा तुरंत। যে সমস্ত মানুষ পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে মাতাল বলে সমালোচনা করেছিল, তারাও সেই ফল খেয়ে নাচতে লাগলো আর বলতে লাগলো, খুব ভালো, খুব ভালো। हरे कृष्ण। आप लोग भी बोल सकते हैं, खूब भालो, खूब भालो, बोलिए। खूब भालो, খুব ভালো, খুব ভালো, खूब भालो। খুব ভালো। भालो লাগছে तो? अगर भालो लग रहा है तो बोलना चाहिए सबको, खूब भालो। फिर से बोलिए, खूब भालो। খুব ভালো লাগছে প্রভু, ভালো। অনেক ভালো লাগছে। ভালো ভালো ভালো। वेरी खूब भालो लगता है আমাকে তো ভাই। वेरी नाइस। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করে, তখন মায়াবাদী, নাস্তিক এবং মূর্খরা তাকেও অনর্থক সমালোচনা করেছিল। সেই ধরনের মানুষেরা যে আমাদেরকেও সমালোচনা করছে, সেটি স্বাভাবিক, প্রভুপাদ বললেন। এই ধরনের মানুষ সবসময় থাকবে। হরে কৃষ্ণ। এই ধরনের মানুষ সবসময় থাকবে। এবং তারা সবসময় মানব সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধনকারীদের সমালোচনা করবে। ক্রিটিসাইজ हमेशा करेंगे, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। কিন্তু সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচারকদের এই ধরনের সমালোচনার দ্বারা ব্যথিত হয়ে চলবে না। এই ধরনের মূর্খদের ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করার পন্থা হচ্ছে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে কীর্তন করার জন্য নিমন্ত্রণ জানানো। दो प्रभुपाद दो रेमेडी दिया। एक तो क्या, प्रसाद के लिए देखिए, इसका मंदिर में डेली शाम को नीचे प्रसाद वितरण हो रहा है, खिचड़ी प्रसाद, और ऊपर कीर्तन हो रहा है, तो देख के लोग सब आ जाता है। এটাই আমাদের কৌশল হওয়া উচিত। ওকে, দিস ইজ আওয়ার ট্যাকটিক্স। আমাদের এই আন্দোলনে যে যোগদান করতে আসে, তাকে অবশ্যই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিক হতে হবে। তবেই এই প্রকার ব্যক্তি কেবলমাত্র আমাদের সান্নিধ্য এসে আমাদের সঙ্গে কীর্তন করে, নৃত্য করে এবং প্রসাদ গ্রহণ করে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে যে এই আন্দোলন সত্যি অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কিন্তু যে জাগতিক সুখ সুবিধা লাভের আশায় অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির আশায় আমাদের এই আন্দোলনে যোগদান করে, সে কখনোই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। এই তো কহিলু প্রেম ফল বিতরণ, এই তো কহিলু প্রেম ফল বিতরণ, এবে শুনো ফলদাতা যে যে শাখাগণ, এবে শুনো ফলদাতা যে যে শাখাগণ, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জাগাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। এতক্ষণ আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমফল বিতরণের বর্ণনা করলাম। এখন আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপী বৃক্ষের বিভিন্ন শাখার বর্ণনা করব আগলে চ্যাপ্টার में, ঠিক আছে? দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন। শ্রী রূপ গোস্বামী ও শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রী পাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি ভক্তি কল্পতরু বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা নবম পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। দশম পরিচ্ছেদ। নমো বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रचारिणे श्रील प्रभुपाद की জয় জয়। জয় জয়। এই পরিচ্ছেদে শ্রী চৈতন্য বৃক্ষের শাখা সমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। এই দশম পরিচ্ছেদের নাম
চৈতন্য বৃক্ষের মূল স্কন্ধ ও শাখা প্রশাখা। कविराज गोस्वामी खुद स्टार्टिंग कर रहे हैं एक संस्कृत श्लोक देकर, सीसी 10.1 आदि। श्री चैतन्य पदाम्भोज श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यो नमो नमः। मधुपेभ्यो नमो नमः। कथंचित् आश्रयादेशां कथाचिदाश्रयादेशां स्वापि तद्गन्ध भाग भवेत्। स्वापि तद्गन्ध भाग भवेत्। অনুবাদ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মের মধুপানকারী মৌমাছি সদৃশ ভক্তদের আমি পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি। सब प्रणाम करिए कविराज गोस्वामी को। কুকুর সদৃশ অভক্তেরা যদি কোনো ক্রমে এই ধরনের ভক্তদের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে সেও সেই পাদপদ্মের গন্ধ আস্বাদন করতে পারে। হরিবল হরিবল। এই সম্পর্কে একটি কুকুরের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কুকুর সাধারণত কোনো অবস্থাতেই ভক্ত হতে পারে না, কিন্তু তবুও দেখা যায় যে ভক্তের কুকুর ধীরে ধীরে ভগবত ভক্তি লাভ করছে। इसका मतलब नहीं कि घर में कुत्ता रखना चाहिए। আমরা দেখি যে কুকুর তুলসী বৃক্ষের প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। कुकुर साधारणत तुलसी वृक्षे मूत्र त्याग करे। ताई कुकुर, ये कोई श्राप मिला था शायद सीता देवी का, ऐसे कुछ, किसी को मालूम है स्टोरी क्या है? यस सविता माता जी। वो सीता माता जी जो महाराज दशरथ के जो वो क्या बोलते हैं वो पिंडदान जो की थी ना, तो वो एक सेकंड, सीता माता जी जो महाराज दशरथ के पिंडदान किया था, थोड़ा थोड़ा सोच के बोलिए। ঠিক আছে ঠিক আছে ठीक है जी, ठीक है जी। गया में जाकर के पिंडदान की थी। सीता পিণ্ডদান माता করেছিল, অস্বীকার করেছিল রাম। ওকে বলতে দিন না, সব একসঙ্গে বলতে হবে। আপনার মতো আমি ইন্টেলিজেন্ট না, আমি প্রশ্ন থাকতেই পারে না। सीता माता जी दशरथ महाराज का पिंडदान किया था जी। गया में। अच्छा ठीक है, फिर आगे। तो फिर जैसे फिर बाद में राम जी जब आए तो उनको से उन्होंने कहा कि वो बाद में राम जी जो आए, हाँ राम जी आए फिर बाद में, तो उन्होंने पिंडदान करने के लिए अपने पिताजी के लिए आए थे। तो उनको बोला गया कि हो चुका है ये, तो सीता माता जी ने कहा, तो वो बोले कि कैसे मैं मानूं कि हुआ है। तो वो तुलसी माता को और गाय को साक्षी बना करके बोली। तो तुलसी माता जी ने मैंने वो इस चीज को अस्वीकार कर दी, इसीलिए वो क्रोधित होकर के तुलसी माता को श्रापित कर दी कि तुम गंदे स्थान में भी आपका उत्पत्ति हो जाएगा। और गौ माता को भी श्राप दी थी, क्या और कई जनों को श्राप दिया था उन्होंने, बस जितना याद है हरु में बता। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ बोलिए। गौ माता को श्राप दी थी कि तुम मतलब कचरा में भी मुंह दोगी, कूड़ा करके जहाँ पड़ा रहेगा उसमें तुम मुंह दोगी। ओके, खाने के लिए। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो माता जी ने कहा ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, ये लोग सब आए, सीता माता दशरथ जी का ये करने गया में गए थे श्राद्ध पिंड दान करने। तो राम और लक्ष्मण चले गए सामग्री लेने, पर उनको वहां देर हो गई। यहाँ से सीता माता को इन्होंने बताया, जो ब्राह्मण वहां थे, कि पिंडदान का टाइम हो गया, आप कर दीजिए। शी सेज कि अरे वो लोग तो आए ने, बोले कोई बात नहीं, टाइम मुहूर्त इज इम्पोर्टेंट। तो कहते हैं कि दशरथ जी ने हाथ निकाला था, जमीन से बाहर आया था और पिंडदान स्वीकार किया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता माता ने कहा पिंडदान, सब उनको बताया कि ऐसे मुहूर्त के कारण मुझे करना पड़ा। तो राम और लक्ष्मण कहते हैं कि अच्छा, उनको विश्वास नहीं होने का, यहाँ कौन है जो आपको मतलब ये मानेगा, मतलब स्वीकृति देगा कि यहाँ पिंडदान हुई है। तो वो गंगा जो वहाँ नदी बहती है ना, उनसे भी पूछती है, वो भी
सरयू नदी भी ना कर देती है कि नहीं हुआ, गाय भी बोलती नहीं हुआ, खाली वट वृक्ष कहता है। वैसे ही तुलसी माँ भी ना, लेकिन वट वृक्ष कहता है कि नहीं हुआ है, पिंडदान किया है इन्होंने। तो अच्छा। जब सीता माता नाराज होगी, इसीलिए सरयू रिवर भी हमेशा वहां देखे कभी बहते, मतलब कोई बहुत पानी ही नहीं है, लो फाल्गु नदी। पानी नहीं, फाल्गु जो नदी। भी सॉरी, फाल्गु नदी में पानी नहीं रहता है। गाय को उन्होंने ये श्राप दिया कि आप कूड़ा करकट भी खाओगे। तुलसी माता को ये श्राप दिया कि इवन डॉग भी आपके ऊपर मूतेगा। लेकिन वट वृक्ष को उन्होंने दिया, ये कहा कि आपने चूंकि सच बोला है, सत्य बात कहिए, इसलिए आप फलोगे फूलोगे और लोग आके आपकी अर्चना पूजा करेंगे। और अपन इसीलिए वट वृक्ष में लोग बांधते हैं ना अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो ये उनको सीता माता ने, दिस इज द स्टोरी, और ये गया में ही हुआ था। वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। बट वृक्ष को ये भी कहा था कि लोगों को छाया प्रदान करोगे। हाँ हाँ। কুকুর সাধারণত তুলসী বৃক্ষে মূত্র ত্যাগ করে, তাই কুকুর হচ্ছে সবচাইতে বড় অভক্ত। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলনের এমনই ক্ষমতা যে কুকুর সদৃশ অভক্তেরা পর্যন্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে ভক্তে পরিণত হতে পারে। ওকে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান গৃহস্থ ভক্ত শিবানন্দ সেন জগন্নাথপুরীতে যাওয়ার পথে একটি কুকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই কুকুরটি তাকে অনুসরণ করতে থাকে এবং অবশেষে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতে যায় এবং মুক্ত হয়। তেমনি শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের কুকুর বিড়ালেরা পর্যন্ত মুক্তি লাভ করেছিল। কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য পশুরা ভক্তে পরিণত হবে তা আশা করা যায় না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে তারাও উদ্ধার পায়। হরি বল। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ, জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ, জয় দ্বৈত জয় গৌর ভক্ত, জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ, জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु इसमें लाइन है ना, इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर के कुत्ते तथा बिल्ली को मोक्ष प्राप्त कर सके। तो हाँ। उनके घर में वो तो शुद्ध देवोती थे ना, तो फिर मतलब कैसा ये प्रसंग है? वो ऐसा नहीं पालता था, उधर था कोई आसपास। अभी गांव में क्या होता है, घर के अंदर कोई रहता है कुत्ता बिल्ली, वो तो महाप्रभु भाव विभोर होकर तुम्हारा घर का कुत्ता बिल्ली भी कृष्ण भक्ति प्रेम लाभ करेगा, ऐसे करके महाप्रभु ने संकीर्तन के समय बोला था। इसका मतलब नहीं कि वो डॉग और कुत्ता पाल रहा था, डॉग और बिल्ली पाल रहा था। वो घर में रहता है ना, गांव में क्या, गांव में बड़ा वैसे कोई तो हम लोग का जैसे बाउंड्री वाले सब तो कुछ है नहीं, बड़ा बड़ा है घर में कुत्ता बिल्ली आना जाना तो रहता ही है गांव में। अच्छा, आसपास ऐसा नहीं कि वो पाल रहा था। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु हमने देखा है जब हम लोग राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर होता है, कितनी बार डॉग आकर के ऐसे बैठ के सुनते हैं जैसे लगता कोई डिवोटी सुन रहा है। बहुत ही एकदम विदाउट एनी साउंड, ना किसी को डिस्टर्ब करते, ना कुछ, आके बैठ जाते। तो कभी कभी लगता है क्या पता पिछले जन्म के डिवोटी थे कि क्या थे, एकदम मतलब बिल्कुल आके सुनते हैं जैसे हम लोग बैठ के सुनते हैं। यस, ये हम लोग भी 2011 में महाराज का यात्रा में गए थे, वो फोगला आश्रम में महाराज प्रवचन दे रहे थे। स्वामी महाराज उस समय यही शिवानंद सेन का आया था कि महाप्रभु, जब शिवानंद सेन जब पुरी में गया तो देखा महाप्रभु एक ऊपर वाला प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है और महाप्रभु ऐसे ऐसे महाप्रसाद फेंक रहा है और नीचे से कुकुर ओ ओ करके ऐसे करके जंप करके वो महाप्रसाद खा रहा है। ये जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बोला, वहां से वाह 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 करके 4-5 कुकुर आवाज दिया। एकदम इसी वक्त दिया। वो तो मैंने खुद देखा। यस 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 सत्यभामा माता जी, क्या माहौल था, वो क्या दिन था। फोगला आश्रम में 10,000 भक्त एक साथ दामोदर अष्टकम कर रहे हैं। ओ माय गॉडनेस, बहुत ब्यूटीफुल है एक्सपीरियंस, बहुत ही ब्यूटीफुल। प्रभु कभी कभी ऐसा भी देखा है ना, जैसे संकीर्तन करते हुए भक्त, काफी भक्त झुंड जा रहा है, उसमें पीछे पीछे कुत्ते भी चलते हैं, कितना बार देखा है। ओके,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক, শ্রী অদ্বৈত চন্দ্রের জয় হোক এবং শ্রীবাসাদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের জয় হোক। এই মালির এই বৃক্ষের অকথ্য কথন, এই মালির এই বৃক্ষের অকথ্য কথন, এবে শোনো মুখ্য শাখার নাম বিবরণ। এবে শুনো মুখ্য শাখা নাম বিবরণ। চৈতন্য গোসাইর যত পারিষদ চয়, চৈতন্য গোসাই যত পারিষদ চয়, গুরু লঘু ভাবতার না হয় নিশ্চয়। গুরু লঘু ভাব তার না হয় নিশ্চয়। যত যত মহান্ত কইলা তা সবার গণন, যত যত মহান্ত কয়লা তা সবা গণন। এহ করিবারে না রে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম, কেহ করিবারে না রে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম। অতএব তা সবারে করি নমস্কার, অতএব তা সবারে করি নমস্কার। নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার। नाम मात्र करी दोष ना लवे अमर। तो कविराज गोस्वामी अभी जितना भी महाप्रभु का शाखा प्रशाखा सबका नाम लिया, आगे से ही क्षमा चाह रहे हैं, क्योंकि किसी का नाम आगे लिया किसी का नाम बाद में लिया तो लोग सोचेगा कि जो आगे लिया वो बड़ा है, जो बाद में लिया उनका छोटा है, तो ऐसे दोष हो सकता है। लेकिन आगे से क्लैरिफाई करे ऐसा दोष मत करिएगा, ठीक है प्रभु। माल्यकार रूपे और वृक्ष रूपे श्री चैतन्य महाप्रभु एक অচিন্ত তত্ত্ব। এখন সেই বৃক্ষের মুখ্য শাখাগুলির নাম ও বিবরণ শ্রবণ করুন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বহু পার্ষদ, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ বড় কেউ ছোট তা বিচার করা উচিত নয়। সমস্ত মহান ব্যক্তিরা তাদের গণনা করলেন, কিন্তু কেউ বিচার করতে পারলেন না কে বড় এবং কে ছোট। সমস্ত মহান ব্যক্তিরা তাদের गणना করলেন। ओके, गणना করলেন মানে सोचिए जितना महान महान लोग था उन लोग ने, हो सकता है कि महाप्रभु का प्रकट के बाद सब बैठा और कागज कलम लेकर पूरा लिखा, महाप्रभु का ये भी भक्त है, ये भी भक्त है, ये भी भक्त है, नित्यानंद प्रभु का ये डिसाइपल है, अद्वैताचार्य का ये, माने पूरा जो ट्री बनाया। समझ में आ रहा है? उस समय कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। लेकिन किंतु केउ विचार करते पारलेन ना के बड़ एवं के छोट, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। আমি দৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তাদের উদ্দেশ্য আমার প্রণতি নিবেদন করি। আমি তাদের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন আমার কোনো অপরাধ না নেন। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, प्रेमामर तरो प्रियान, प्रेमामर तरो प्रियान, शाखा रूपान भक्तगणान, शाखा रूपान भक्तगणान, कृष्ण प्रेम फल प्रदान। कृष्ण प्रेम फल प्रदान। শ্রী চৈতন্য রূপ কল্পবৃক্ষের কৃষ্ণ প্রেম রূপ ফলদাতা শাখা রূপ সমস্ত ভক্তদের আমি বন্দনা করি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উচ্চ নিচ বিচার না করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারকারী ভক্তদের প্রণতি নিবেদন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত বলে নিজেদের পরিচয় প্রদানকারী কিছু মূর্খ লোক বড় ছোট বিচার করে। যেমন প্রভুপাদ উপাধিটি গুরুদেবকে দেওয়া হয়, বিশেষ করে বিশিষ্ট গুরুদেবকে, যেমন শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ অথবা শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত গোস্বামী প্রভুপাদ। তেমনি আমাদের শিষ্যরা যখন তাদের গুরুদেবকে প্রভুপাদ বলে সম্বোধন করতে চায় তখন কিছু মূর্খ লোক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা বলে যেহেতু তাদের গুরু মহারাজকে তারা প্রভুপাদ বলে সম্বোধন করে তাই আর কেউ এই উপাধিটি গ্রহণ করতে পারেন না। সারা পৃথিবী জুড়ে যে কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার হয়েছে এই কথা বিচার না করে কেবল মাৎসর্যের বশবর্তী হয়ে এই সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা একটি দল তৈরি করে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন কে হেয় করার চেষ্টা করে। হেয় মানে তুচ্ছ করার চেষ্টা করে, নিচু দেখানোর চেষ্টা করে।
এই সমস্ত মূর্খদের তিরস্কার করে কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টভাবে বলেছেন, কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম। যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতর প্রচারক তাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধা পরায়ণ হতে হবে। একজন প্রচারককে বড় বলে মনে করে এবং আরো একজন প্রচারককে ছোট বলে মনে করে ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। এই ভেদ বুদ্ধি জড়জাগতিক এবং চিন্ময় স্তরে এই ধরনের ভেদ বুদ্ধির কোনো অবকাশ নেই। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারকদের চৈতন্য বৃক্ষের শাখা রূপে বর্ণনা করে তাদের সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন এই চৈতন্য বৃক্ষের একটি শাখা এবং তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তদের উচিত এই শাখাটির প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ হওয়া। एनी क्वेश्चन? सबको समझ में आ रहा है? विनोद अग्रवाल प्रभु का हैंड रेज है बहुत देर तक, कोई प्रश्न नहीं? ये भूल से पहले से ही था। इंदिरा सखी माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसमें बताया जा रहा है कि भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो फिर हम लोगों को यह भी बताया गया है कि एक सेकंड भेदभाव नहीं करना चाहिए किस समय, क्या प्रसंग में बोल रहे हैं? कनिष्ठ अधिकारी और ये अधिकारी जो डिवाइड किए। नहीं, अभी कौन सा प्रसंग चल रहा है? प्रसंग भूलिएगा मत। मंगलाचरण के समय किसी का नाम आगे किसी का नाम बाद में तो लेना ही पड़ेगा ना। आप में से कोई इतना पारदर्शी है कि एक साथ सबका नाम ले सकता है? कोई ऐसा है व्यक्ति? है कोई? सबका नाम एक साथ ले लीजिए, ऐसे तो हो नहीं सकता है। उसीलिए आगे पीछे तो होगा ही। हम लोग भी मंगलाचरण करते हैं, सबका नाम एक साथ ले सकते हैं क्या हम लोग? किसी का नाम आगे किसी का नाम बाद में, तो जिसका आगे लिया वो बड़ा है, जिसका आगे बाद में लिया छोटा है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, यही कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। आप प्रश्न कीजिए। सो ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट छोटा बड़ा, लेकिन भेद भक्तों में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे महाप्रभु ने 3 प्रकार के भक्त बोले हैं ना अलग अलग जगह में, तो उसमें भेद है, बोला हुआ है मध्यम अधिकारी, उद्धम अधिकारी, बहुत भेदभाव करना चाहिए। कौन से कृष्ण नाम के ऊपर? कौन कृष्ण नाम? कौन जो एक बार नाम उच्चारण के वही कनिष्ठ अधिकारी हो गए? कभी भी एक बार नाम उच्चारण किया, जिसको देख के हरिनाम याद आ जाए या कोई कर दे, वो कौन है? उत्तम अधिकारी। तो अलग अलग प्रसंग के ऊपर भेदभाव करना दरकार है, लेकिन वो कोई अपराध नहीं है। यहां मंगलाचरण के सामने समय के अगर पहले आप नाम ले रहे, प्रभु मेरा नाम पहला क्यों नहीं लिया, ऐसे उस समय उस प्रसंग में बात किया जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट। श्रीवास पंडित और श्रीराम पंडित बोलिए। श्रीवास पंडित और श्रीराम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত এই দুই ভাই হচ্ছেন চৈতন্য বৃক্ষের 2টি শাখা যা সমস্ত জগতে বিদিত। अच्छा, श्रीवास पंडित तो हम लोग को मालूम है, श्रीवास आंगन श्रीवास पंडित है ना, किनके अवतार है? साक्षात नारद मुनि का अवतार है, और उनका भाई भी है एक श्रीराम पंडित। ठीक है, उनके बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों ही महाप्रभु का डिसाइपल है। चैतन्य वृक्ष 2 शाखा, ठीक है, 2 शाखा। मूल वृक्ष कौन है? गौरांग महाप्रभु। एक 2 ब्रांच किया, श्रीवास पंडित श्रीराम पंडित। गौरव गणेश दीपिका है जो कवि कर्णपुर ने लिखा है। कवि कर्णपुर कौन है? शिवानंद सेन का पुत्र। বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীবাস পণ্ডিত হচ্ছেন নারদ মুনির অবতার এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত হচ্ছেন নারদ মুনির এক অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু पर्वत मुनिर अवतार। पर्वत मुनि सुना था नाम। हिरणमय गौरांग प्रभु, क्या प्रसंग में आया था पर्वत मुनि का नाम? दोनों एक साथ में गए थे, कोई नारद मुनि या पर्वत मुनि, और जो मुर्गारी हो सकता है उनको तो उधर किया ना, उस टाइम में दोनों एक साथ में थे।
अच्छा, हाँ, कभी कभी दोनों जाते थे, हाँ, कहाँ पर। तो बहुत क्लोज फ्रेंड है। यस राजीव हाँ। प्रभु। हाँ, मिगारी के केस में आता है उनका नाम। कोई जब मिगारी मिगारी को उद्धार करते हैं और मिगारी भक्त बन जाता है, तो नारद मुनि बोलते हैं कि चलो तुम मैं एक भक्त का दर्शन कराता हूँ। तो जब दूर से पर्वत मुनि और नारद मुनि आते हैं तो देखते हैं मिगारी कूद कूद के आ रहे हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं तुम ऐसे कूद कूद के आ रहे हो? बोले कि गुरु महाराज वो रास्ते में चींटियां थी तो उनको बचाते हुए आ रहा था। तो पर्वत मुनि आश्चर्यचकित हो जाते, बोले कि ये वही मिगारी है जो जीवों को आधा मार के छोड़ देता था, इसका इतना परिवर्तन हो गया। हरी बोल, यस। ओके, तो ये पर्वत मुनि का अवतार कौन है? श्री राम पंडित, जो श्रीवास ठाकुर के ब्रदर कलयुग में बन के आए। श्रीवास पंडित स्त्री मालिनी देवी श्री कृष्ण के स्तनदानकारी अंबिका नामनी धात्री अवतार बोले परिचित। क्लियर है? तो ये अंबिका नामक कोई धात्री थी कृष्ण लीला में, उस वही मालिनी देवी रूप में अवतार लिया चैतन्य লীলা में। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাতুষপুত্রী এবং শ্রী চৈতন্য ভাগবতের গ্রন্থকার ছিল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা নারায়ণী হচ্ছেন কৃষ্ণলীলায় অম্বিকার ভগ্নী। तो इसका मतलब ये भातुष पुत्र श्रीवास पंडितेर भातुष पुत्री भाइयर, तो श्रीराम पंडित तो भाई, तो श्रीराम हिरण्य गौरांग, तो श्रीराम पंडित का डॉटर का नाम है नारायणी। ठीक बोलছি? इधर लिखे কি लिखा नहीं ना? नहीं, वही तो होगा। भाई इनका बड़ा भाई का नाम था, लेकिन दूसरा मालूम होता है। पर दो ही तो भाई है, श्रीराम, श्रीवास और श्रीराम। ना 5 भाई थे, टोटल 5 भाई थे। हाँ, अच्छा, दो भाई बना, महाप्रभु का डिसाइपल 2 भाग बना। हो सकता है। अच्छा, मैंने 2 भाई महाप्रभु का शाखा है, बाकी भाई समझ गए। अच्छा, और आगे आएगा। अच्छा, आगे आएगा। ओके। শ্রী চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন শ্রীবাস পণ্ডিত খুব সম্ভবত মহাপ্রভুর বিরহে নবদ্বীপ ত্যাগ করে কুমারহট্টে বসতি স্থাপন করেন। শ্রীপতি শ্রীনিধি তার 2 সহোদর, श्रीपति श्रीनिधि तार 2 सहोदर, 4 ভাইয়ের দাস দাসী গৃহ পরিকর, 4 भाई रे दास दासी गृह परिकर, 2 শাখার উপশাখায় তা সবার গণন, 2 शाखार उपशाखाय तासवांगण, যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্তন। जार गृहे महाप्रभु सदा संकीर्तन। শ্রীপতি ও শ্রীনিধি হচ্ছেন তার আর 2 জন সহোদর, মানে অর্ধ ভাই। এই 4 ভাইয়ের দাস দাসী গৃহ পরিবার সেই 2টি শাখার উপশাখা বলে গণনা করা হয়। ওকে, তো মেন 2 শাখা है শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীরাম পণ্ডিত। এই শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর সংকীর্তন করেন। ইয়েস ইন্দ্রাণী মাতাজি। প্রভুজি উনি ওই হিমাদ্রি প্রভু যে বললেন ওরা 5 ভাই ছিল, এখানে 4 ভাইয়ের নাম আসলো, আর যে নারায়ণী যে ভাতুষপুত্রী সেটা কোন ভাইয়ের সেটার উল্লেখ হয়নি, তাই তো? সেটা বড় ভাই ছিল, ও বাংলাদেশে ছিলেন উনি ওখানে, উনি ওনার স্ত্রী 2 জন এক্সপায়ার হয়ে যান, তারপরে নারায়ণকে নিয়ে আসেন এখানে। এটা পঞ্চম ভাই বলছেন, পঞ্চম ভাইয়ের কথা। পঞ্চম ভাই এই 4 এর মধ্যে একজন? না, এই 4 ছাড়া আরেকজন ছিল বাংলাদেশে। আচ্ছা আচ্ছা, ও ওনারই পুত্রী নারায়ণী। আচ্ছা, 4 ভাই সব অংশে করে চৈতন্যেরও সেবা, 4 भाई सब अंशे करे चैतन्य सेवा, গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা, गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। এই 4 ভাই সব অংশে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেবা করেন।
গৌরচন্দ্র ছাড়া তারা আর অন্য কোনো দেবী দেবীকে জানেন না। তাৎপর্য, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন অন্য দেবাশ্রয় নাই। ও ये कोई भजन है। অন্য দেবাশ্রয় নাই তোমার কহিনু ভাই, এই ভক্তি পরম কারণ। কেউ যদি ভগবানের একনিষ্ঠ শুদ্ধ ভক্ত হতে চান, তাহলে তার অন্য কোনো দেবদেবীর শরণাগত হওয়া উচিত নয়। মূর্খ মায়াবাদীরা বলে যে দেবদেবীদের পূজা করা আর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা এক, কিন্তু সেই কথা সত্য নয়। এই দর্শন মানুষকে নিরীশ্বরবাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। যারা ভগবান সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তারাই মনে করে যে যে কোনো একটি কল্পিত রূপ বা যে কোনো মূর্খ পাষণ্ডীকে ভগবান বলে গ্রহণ করা যায়। এই ধরনের সস্তা ভগবান অথবা ভগবানের অবতারকে গ্রহণ করা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতা। তাই বুঝতে হবে যে যারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে অথবা ভুইফোর অবতারদের পূজা করে, তারা সকলেই নাস্তিক। भूईफोर अवतार समझ में आ रहा है? जब खोई माने खोई खाता है ना हम लोग, तो खोई जब हम लोग कढ़ाई में ऐसे करते ना, तो फुट करके टुक 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 करके आता है ना ऊपर। आप देखिएगा कॉर्नफ्लेक्स भी, अगर आप जो भुट्टा दुकान में रास्ता में सड़क में भुट्टा जो भाजता है ना, तो देखिएगा फुट टुक 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 करके आता है ना कढ़ाई से ऊपर, तो भूईफोरा। तो भूईफोरा अवतार माने अचानक ये आ गया ये भी अवतार, ये ऐसा बोगस अवतारों का पूजा नहीं करना चाहिए। तारा सकले नास्तिक। तो जो लोग हिंदी में बोलता है प्रभु स्वयंभू, तो अपने आप माने बिना माता पिता का खुद ही आ गया स्वयंभू। तो भूईफोरा अवतारদের पूजा करे तारा सकले नास्तिक। देखिए प्रभुपाद नास्तिक का क्या डिफिनेशन दे रहा है। नास्तिक माने क्या, जो एक्चुअली लिटरल मीनिंग क्या है नास्तिक माने, जो किसी को मानता नहीं है, जो कोई भगवान को मानता नहीं है, ये तो नास्तिक का है ना डेफिनेशन। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो ऐसे बोगस अवतार को मानता है वो भी नास्तिक ही है। भगवद गीता 7ম অধ্যায়ের 20 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা অনুসারে তাদের জ্ঞান অপরিহিত হয়েছে। কামেস্তেস্তে তজ্ঞান প্রপদ্যন্তে অন্ন দেবতা। ये ज्योतिर्मय सीता माता जी को क्या हुआ था, कभी कभी 2000 क्वेश्चन आता है और कभी कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो इससे क्या समझने का है कि जिस दिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस दिन सो रही है या क्लास में सो रही है। नहीं प्रभु। अच्छा माता जी, तो क्या है? नहीं प्रभु, मेरे को समझ में आ रहा है। अच्छा, मैंने बहुत नहीं आता तो मैं खुद ही एक दिन पूरा समझ में आता है तो कोई दिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब मिसाइल छोड़ता है तो 2001 नहीं तो कुछ प्रभु आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं प्रभु, पार्षद के लिए कितना समझाए। मतलब जो दिन आप प्रश्न करते हैं उस दिन अच्छा से नहीं समझाते हैं। नहीं प्रभु, आप कभी कभी कुछ होता है हमको ही समझ में नहीं आता, आप तो बहुत अच्छे से चेष्टा करके समझाते हैं प्रभु। अच्छा, জড়জাগতিক কামনা বাসনার প্রভাবে যাদের জ্ঞান অপরিত হয়েছে তারাই বিভিন্ন দেবদেবীর শরণাগত হয়। দুর্ভাগ্যবশত যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত অমৃত আস্বাদন করেননি এবং যথাযথভাবে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেননি, তারা যে কোনো পাষণ্ডীকে ভগবানের অবতার বলে গ্রহণ করে এবং তাদের মতবাদ হচ্ছে যে কেবলমাত্র দেবদেবীর পূজা করেই ভগবানের অবতার হওয়া যায়। হিন্দু ধর্মের নামে সমস্ত জগা খিচুড়ি চলছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন তা সমর্থন করে না। প্রকৃতপক্ষে আমরা তার তীব্র নিন্দা করি। এই সমস্ত দেবদেবীর পূজাকে এবং তথাকথিত সমস্ত অবতারের পূজাকে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির সঙ্গে এক বলে মনে করা কখনোই উচিত না। জগা খিচুড়ি মানে বুঝেন তো? জগা খিচুড়ি
माने खिचड़ी में सब कुछ डाल दो। खिचड़ी माने क्या, वेजिटेबल खिचड़ी। अरे घर में ये बच गया, मूला दे दो, ये बच गया दे दो, ये भी वो भी जगा खिचड़ी। तो जন্য हिंदू धर्मेर नामे समस्त जगा खिचड़ी चलছে। ये भी भगवान है, अरे इसको लाओ, अरे ये भी भगवान है हिंदू का, हिंदू लोग का, ये भी भगवान है, अरे वो भी है, ऐसे कर जगा खिचड़ी। 12 নম্বর, আচার্য রত্ন নাম ধরে বড় এক শাখা। आचार्य रत्न नाम धरे बड़ो एक शाखा, তার পরিকর তার শাখা উপশাখা। तार परिकर तार शाखा उपशाखा। আরো এক বড় শাখা হচ্ছে আচার্য রত্ন। और एक नाम क्या है आचार्य रत्न का? चंद्रशेखर लिखो। चंद्रशेखर आचार्य, लिख के रखिए। इनका और एक नाम क्या है? चंद्रशेखर आचार्य। আরো এক বড় শাখা হচ্ছেন আচার্য রত্ন এবং তার পরিকরেরা হচ্ছেন সেই শাখার उपशाखा। अभी चंद्रशेखर आचार्य के बारे में हम लोग को क्या मालूम है? कौन बता पाएगा? गूगल हाथ उठाइए। ये हिरण में गौरांग प्रभु, और वो तो लास्ट में जाके बनारस में थे। और उनका मौसा होता है, मालूम होता है। और क्या मालूम है? महाप्रभु जब बनारस में रहते थे तो कहाँ क्या करते थे? उनका घर में रहते थे। उनका घर में रहते थे या प्रसाद पाते थे? रहते थे। इनका घर में रहते थे और काशी मिश्र का घर में प्रसाद पाते थे। तपन मिश्र का घर में प्रसाद पाते थे। हाँ, तो महाप्रभु जब गए थे बनारस प्रकाशानंद को उद्धार करने के लिए, प्रकाशानंद उस समय इनके घर में रहते थे और तपन मिश्र का घर में प्रसाद लेते थे। तो हम लोग ने इनका घर गया था, शायद ब्लू वाला दरवाजा इन्हीं का था ना, ब्लू वाला गेट क्या था? उनका घर हम लोग गया नहीं। हम लोग पहले जहाँ गए थे वो जो ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था और 10,000 शिष्य जो प्रकाशानंद सरस्वती जहाँ बैठ के पाँव धोए थे, वो जगह में पहले गया। उसके बाद जो ब्लू वाला गेट में गया था वो तपन मिश्र के घर में गया था। ये दोनों गया था। नहीं, तपन मिश्र का तो लास्ट में हम लोग गया। पहले जो गया था वो जहाँ पाद धोए वो तो याद है, वो प्लेटफॉर्म सड़क के ऊपर। हाँ, ये दोनों है। और हम लोग उनका घर खो गया होगा, वो गंगा में खो गया, ऐसे कुछ। ओके। आचार्य रत्नेर नाम श्री चंद्रशेखर। आचार्य रत्नेर नाम श्री चंद्रशेखर। तार घरे देवी भावे नाचिल ईश्वर। যার ঘরে দেবী ভাবে নাচিল ঈশ্বর। আচার্য রত্নের আরো একটি নাম হচ্ছে শ্রী চন্দ্রশেখর। তার গৃহে এক নাটকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লক্ষ্মী দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। হরি বল হরি বল হরি বল। ये तो मालूम ही नहीं था, मैंने पढ़ा है, आगे भी याद नहीं है। आपका नेक्स्ट गोल फिक्स हो गया। हरे कृष्ण। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলাবিলাস কালে नाटकेरो अभिनय होतो। और किनका लीला विलास में नाटक का अभिनय होता है? एक है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का भी। क्यों? भगवान कृष्णचंद्र का भी तो नाटक का विलास होता था। भगवान कृष्णचंद्र राम जी बन गए थे, पुल बना रहे थे गोपी लोगों के लिए, था ना? आता है ना प्रसंग? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলাবিলাস কালে নাটকেও অভিনয় হতো। তবে সেই নাটকের সমস্ত অভিনেতা ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত এবং বাইরের লোকেরাও তাতে অংশগ্রহণ করতে পারত না। আউটসাইডার্স নট অ্যালাউড। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের ভক্তদের উচিত এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা। রূপানুগাস কি জয় হো জয় হো জয় হো। जय 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 जय। वाह, चलिए अच्छा लगा सुन के। प्रभुपाद जी का भी इच्छा था ये बात। যখন তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অথবা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে নাটকের অভিনয় করেন, তখন অভিনেতা অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে।
हमको उस दिन लग रहा था कि उस दिन ड्रामा तो ठीक है, अच्छा हुआ। हम लोग का जो उस दिन गौर पूर्णिमा में जो खोला विचा श्रीधर वाला जो ड्रामा हुआ, ठीक है। काश खेतुरी उत्सव जो हम लोग का ड्रामा था, उसका भी काश ऐसे ही माहौल होता है, क्योंकि वो ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट था। ड्रामा लोगों को मालूम ही नहीं है। बहुत गुह्य लीला था खेतुरी उत्सव। लेकिन उस दिन इतना, पिछले साल ही हुआ था ना, इतना बारिश हुआ, इतना वो तूफान आया, वो ढक गया, लोग भाग गया, याद है। लेकिन हमको भी लग रहा था कि भगवान का लीला है, कोई चीज प्रकाशित किया, कोई चीज अप्रकाशित ही रह गया। वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट था ड्रामा। দুর্ভাগ্য না, ভগবানের এটা উইল অফ প্রভিডেন্স, বিধিবিধান। ওইটা কিন্তু যারা দেখার দেখেছে, অধিকাংশ পালিয়ে গেছে, কিন্তু যাদের দেখা তাদের ঠিক দেখেছে। ওটা অসাধারণ, মানে ওই লীলা দুইও লীলা, ওটা যাই না, হতে পারে ওই জন্যই হয়তো সবার ভাগ্যে ছিল না। ওটা কৃপা কৃপা, সবাইকে কৃপা সব পায় না। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था वो खेतुरी उत्सव। आधा क्या, 99.99 लोगों को मालूम ही नहीं है। वो फिर से क्यों नहीं रिपीट करते हैं कभी? अरे बाबा, वो बहुत, भारती माता जी है। हाँ प्रभु जी। इनको इंचार्ज बना सकते हैं, खेतुरी उत्सव फिर से हो सकता है। फिर देखिए, तुरंत म्यूट कर दिया। हरे कृष्णा। नहीं, मैं यही हूँ प्रभु। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये खेतुरी उत्सव इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। ये सब छोटा मोटा ड्रामा था, अभी जो किया 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में हम लोग उतार दिया। लेकिन खेतुरी उत्सव का प्रैक्टिस कितना दिन चला, वो हम लोग को मालूम है। जिस तरह 2011 में जब हम लोग मयूर ध्वज का ड्रामा किया था, शायद विंटर सीजन में 1 महीना, दिसंबर का महीना, वो पूरा प्रैक्टिस ही चला। प्रभु 3 महीना 3 महीना चला। अच्छा, 3 यह महीना भगवान कृष्ण एक डायलॉग याद कराए थे प्रभु जी आप हम लोग। महाराज मयूर ध्वज बना थे ताम्रध्वज। अब तो आप लोग सब एक्सपर्ट हो गए, नाउ इट विल बी फास्टर। उन दिनों तो शुरू में माता जी बनी थी भगवान कृष्ण। महामंदिर माता जी क्या बने थे? मुझे अवसर नरेटर बनी थी। नरेटर बने थे। हाँ। और मीरा माता जी बने थे और ब्राह्मण। मीरा माता जी बड़ा ब्राह्मण, सुरभि छोटा ब्राह्मण, आप मणिकांत प्रभु थे, मणिधर प्रभु, और श्याम सुंदर गोयनका प्रभु बने थे मंत्री, ऐसे कुछ नहीं। याद है श्याम सुंदर गोयनका प्रभु का? प्रभु जी बनारस में जो नाटक हो रहा था तो तुरंत प्रैक्टिस, तुरंत नाटक। लेकिन ये जो ड्रामा हुआ था मयूर ध्वज का, वो 3 महीना प्रैक्टिस चला, ठंड में, एकदम विंटर में। और एक भक्त था, अर्जुन बना था, वो संजय प्रभु, संजय कोले, पोहू पोहू पोहू, याद है? वो अर्जुन की भूमिका में थे। अर्जुन की भूमिका। बहुत बढ़िया ड्रामा था। यस, सुधामयी वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली टाइम लगने का कारण था कि उस समय आप लोग सारा डायलॉग याद करके बोले थे। अभी तो सब रिकॉर्डेड है, तो वो भी इजी हो गया ना। यस यस, सही बोला आपने प्रभु। अभी हम लोग जो यात्रा में भी देखे, वहाँ कैसे याद करके डायरेक्ट बोल रहे थे सर। अच्छा है, वो भी कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। प्रीतिमनंद प्रेमा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे प्रणाम प्रभु जी। ये खेतरी वाला जो ड्रामा था पिछले साल का, जो आप इतना डिटेल्स में पहले से चैतन्य चेतावनी करवाए थे जो भक्तों को हम लोग के क्लास में, वो सबके समझ में आ रहा था, तो वही लोग ज्यादा भक्ति रत्नाकर मतलब जो भी ये क्लास में सब फॉलो किया था आपके साथ, तो इसीलिए सबको समझ में आ रहा था। बाकी जो और अदरवाइज थे, उन लोग को शायद पढ़े नहीं थे या जो भी लिखा, उतना डिटेल समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पर जब हम लोग प्रेजेंट थे और देख रहे थे ड्रामा को, तो हटने का, चाहे वो बारिश हो चाहे जो हो, हटने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। इसीलिए जो लोग नहीं हट पाए वो पूरा कंटिन्यू देखिए, क्योंकि उन लोग को देखने का इच्छा था ये चीज को लाइव। एकदम जो लोग था वो लोग रह गया, और जो लोग निकल पाए वो निकल गया। क्योंकि जो हम ये चीज देख रहे थे कि जो लोग देख रहे थे ना प्रभु जी, वो लोग बहुत चाव से देख रहे थे, बहुत इंटरेस्ट लेके देख रहे थे कि अब क्या हो रहा है।
मतलब क्या होने वाला है ये चीज। और सबका किरदार भी इतना अच्छा था, सबको इतना अच्छा बढ़िया रोल किया था ना कि वो लग रहा था कि एकदम रियलिटी हो रहा था, इसीलिए सबको अच्छा लगा। आप लोग को बताता हूँ, ये खेतुरी क्या है ये जानने में मेरे को 2-3 साल लग गया। मैं बहुत बार प्रवचन में सुना था खेतुरी उत्सव, खेतुरी उत्सव, ये है क्या खेतुरी उत्सव, ये जानने में हमको 2-3 साल लग गया। मैं राधापाद प्रभु, एकमात्र राधापाद प्रभु उनको बता पाया। मैं कितना लोगों से पूछा, कितना सीनियर डिवोटी से पूछा खेतुरी उत्सव क्या है, एकमात्र राधापाद प्रभु मुझे बताया थे फाइनली। मैं जब उनसे पूछा कि महाप्रभु के अप्रकट के बाद पहला गौर पूर्णिमा जो माना गया था बांग्लादेश में जानवा माता के निर्देशन में, वो है खेतुरी उत्सव। To find out this, I took 2-3 years. Only 1% told me. Nobody knew. Okay. तो ये काटवा ट्रिप में चैतन्य मंगल उधर से सब कुछ मिला, बहुत, वो ट्रिप में बहुत कुछ मिला है सब। Yes. अच्छा, एक्चुअली ये सब बुक्स किया ना तो अभी मजा आता है, ये सब स्थान में जाने से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर भगवान का आदेश हुआ और आशीर्वाद हुआ तो कभी हम लोग जरूर इस्कॉन बांग्लादेश खेतुरी में जाएंगे सब। हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। ओके, ये वाला पैराग्राफ खत्म कर देते फटाफट, तो बीच में पैराग्राफ के बीच में छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। ওকে, যখন তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অথবা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন নাটকের অভিনয় করেন তখন অভিনেতা অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে। পেশাদারী অভিনেতা ও নাটককারদের ভগবত ভক্তির সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই এবং তাই তারা খুব ভালো অভিনেতা হলেও তাদের অভিনয় সম্পূর্ণ প্রাণহীন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই ধরনের অভিনেতাদের বলে যাত্রা দলের নারদ, মানে পেশাদারী অভিনেতাদের। কখনো কখনো যাত্রা দলের কোনো অভিনেতা নারদ মুনির ভূমিকায় অভিনয় করে যদিও তার ব্যক্তিগত আচরণ কোনো মতেই নারদ মুনির মতো নয়, কেননা সে ভক্ত নয়। নারদ মুনি তো ভক্তাবেশ অবতার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় নাটকে এই ধরনের অভিনেতাদের কোনো প্রয়োজন নেই। लास्ट पैराग्राफ, तो आज 5 मिनट का टाइम ज्यादा लगेगा। অদ্বৈত প্রভু শ্রীবাস ঠাকুর ও অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে চৈতন্য মহাপ্রভু নাটক অভিনয় করতেন। আচ্ছা, অদ্বৈত প্রভু শ্রীবাস ঠাকুর और अन्य भक्तों ने चंद्रशेखर आचार्य तो घर तो बनारस है, शायद मायापुर में, शायद नवद्वीप में भी एक घर होगा शायद। ठीक बोलছি हिरण्मय गौरांग प्रभु? नहीं तो इन लोग नाटक कैसे, अभी अद्वैताचार्य प्रभु श्रीवास ठाकुर और महाप्रभु एक साथ बनारस में तो हमको भी सुना नहीं, तो शायद नवद्वीप में ही होगा, उनका एक घर था शायद चंद्रशेखर आचार्य का। जैसे अद्वैताचार्य प्रभु का भी एक घर है ना नवद्वीप में। हम पहली बार याद, मैंने हम इतना साल जा रहा हूँ वो श्रीवास आंगन, कभी भी हमको दिमाग में नहीं आया। श्रीवास आंगन के अंदर से एक रास्ता जा रहा है ना, पतला रास्ता, वहां अद्वैताचार्य का घर है, क्योंकि भक्ति रत्नाकर में उल्लेख आया था जब महाप्रभु अवतरण लेंगे उसके आगे अद्वैताचार्य शांतिपुर से मायापुर आकर इधर भी एक घर बनाया। ये भक्ति रत्नाकर में था, जस्ट बिफोर महाप्रभु आ रहे हैं तो अद्वैताचार्य ने एक उधर भी घर बनाया मायापुर में। অদ্বৈত প্রভু শ্রীবাস ঠাকুর ও অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নাটক অভিনয় করতেন। যে স্থানে শ্রী চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ি ছিল সেই জায়গাটি এখন ব্রজপট্টন নামে পরিচিত। ও, ये मालूम है किसी को? पूछना पड़ेगा किसी को। ব্রজপট্টন, সেখানে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মঠের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাসির বাড়ি होगा फिर, हमको लग रहा है 100% মাসির বাড়ি होगा। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন
তখন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে শ্রী চন্দ্রশেখর আচার্য তা জানতে পারেন এবং তাই কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে থেকে যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথমে নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বহু গুরুত্বপূর্ণ লীলায় শ্রী চন্দ্রশেখর আচার্য উপস্থিত ছিলেন, তাই তিনি চৈতন্য বৃক্ষের দ্বিতীয় শাখা। प्रथम शाखा के श्रीवास पंडित और श्रीराम पंडित, ठीक है इंद्रावती माता जी भूलिएगा मत। सेकंड शाखा कौन है? चंद्रशेखर आचार्य। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी बदन भरिया सबी पद हरि हरि कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जय।